તો ફોર્થ પાર્ટની અંદર તમારું સ્વાગત છે, સોશિયલ સાયન્સ ઓબ્જેક્ટિવ રિવિઝન હર્ષ પારસીમાં. રેડી? લેટ્સ ગો વન બાય વન, એક પછી એક લેતા જઈએ અને ટ્રાય કરીએ કે આપણને કેટલું આવડે છે ને કેટલું નથી આવડતું. જ્યાં ભૂલ પડે છે ત્યાં આપણે સુધારી લઈએ ભૂલને, જેથી કરીને આપણું કામ આસાન થઈ જાય. બરાબર? ચલો, પહેલું છે તમારી સામે. વિચ મિનરલ ઇઝ બેકબોન ઓફ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ? વિચ મિનરલ ઇઝ બેકબોન ઓફ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ? તમારી સામે ઓપ્શન છે ગોલ્ડ, મિનરલ, કોલ, આયર્ન. बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आती है तो मिनरल्स. आंसर भी तो देखो कैसा दिए. आयरन, आयरन इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि लोहे से ही सारी मशीनरी बनती है, सब ट्रांसपोर्टेशन बनता है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मिनरल, सॉरी आयरन. राइट, आयरन. विच टाइप ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन इंडिया? कौन सा आयरन इंडिया में पाया जाता है, मिला जाता है, देखा जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, ऑल ऑफ द अबव. અરે સાચું બોલે ના નામ લેવા જાવ તો મારે કેટલા નામ લેવા પડે. એક તો 2-3 કલાકથી કોન્સ્ટન્ટ લેક્ચર ચાલુ હોય ને હજુ લેક્ચર ચાલુ રહે, एक्स्ट्रा शब्दों પછી વધી જાય. इंडिया में पाए जाने वाले आयंस, हेमेटाइट भी इंडिया में पाया जाता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है, लेमोनाइट पाया जाता है, सब नहीं पाए जाते. हाँ, ऑल द वो सारे के सारे पाए जाते हैं इंडिया में. आइडेंटिफाई द मिनरल यूज्ड टू मेक ब्रास एंड बेल मेटल. मैं तो बताया था एक टाइम पे, बेल मेटल और ब्रास दोनों का मिलन होता है, उससे कौन सा मिनरल बनाया जाता है? विच मिनरल, आइडेंटिफाई द मिनरल यूज्ड टू मेक ब्रास और बेल मेटल बनाने के लिए कौन सा मिनरल यूज किया जाता है? माइका, मैग्नीज, मैंगनीज, आयरन, कॉपर. Copper is the correct answer. Copper is the correct answer. From which ore is aluminium obtained? कौन से ore से aluminium निकाला जाता है? रियलिटी चेक मिल रहा है. From which ore is aluminium obtained? Obtained aluminium का और मिनरल जिसे कहा जाता है, जो फ्रांस से मिला था, लेसबोक्स नाम के गांव से मिला था, उससे कहा जाता है बॉक्साइट. राइट, बॉक्साइट इज द करेक्ट. फिल इन द ब्लैंक. इंडिया रैंक्स इन माइका प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड इंडिया माइका के प्रोडक्शन में कितने नंबर पे? गलेना इज इक्वल टू लीड. राइट, गलेना को लीड गलेना लीड गलेना. करेक्ट. माइका के प्रोडक्शन में इंडिया इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. वी आर द फर्स्ट इन माइका प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी? कहाँ है? विच प्लेस है, प्लेस. वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? लोकेशन बताओ, लोकेशन बताओ, लोकेशन बताओ. दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी. दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर. करेक्ट. रिलायंस. रिलायंस. Solar and wind energy are non-conventional resources. Non-conventional resources है सोलर, विंड एनर्जी दोनों. ट्रू है. क्यों ट्रू है, क्यों गलत है वो बताओ.
તમે લોચો ક્યાં મારી ગયા મને ખબર છે, આમાં લોચો મારી ગયા તમે, નોન કન્વેન્શનલ માં લોચો મારી ગયા, હે ને? તમારે સીધું સમજવાનું, કન્વેન્શનલ નો મતલબ શું થાય ખબર છે? ટ્રેડિશનલ. ઓર્થોડોક્સ, નોન રિન્યુએબલ, આ બધા એના શબ્દો છે. નોન કન્વેન્શનલ ના, એટલે યાદ રાખવા માટે આપણે પ્રેક્ટિસ એટલા માટે જ કરીએ છીએ ને. બરાબર. નોન કન્વેન્શનલ એટલે એવા કે જે સોલાર અને વિન્ડ એનર્જી આર નોન કન્વેન્શનલ રિસોર્સિસ. મતલબ ટ્રેડિશનલ, મતલબ સોરી, આધુનિક નથી, પરંપરાથી ચાલી આવે છે એવું કહેવા માંગે છે, કે પરંપરાથી ચાલી આવે છે. રિન્યુએબલ નથી એવું કહેવા માંગે છે, રાઈટ? હજી હું કંઈક ઊંધું સમજાવું છું એવું છે? કહેવા એવું માંગે છે કે આ સોલાર અને વિન્ડ એનર્જી છે, નોન કન્વેન્શનલ છે, મતલબ કે ટ્રેડિશનલ છે, ઓર્થોડોક્સ છે, નોન રિન્યુએબલ છે, પરંપરાથી ચાલી આવે છે, પહેલેથી ચાલી આવે છે એવું કહે છે, એટલે આપણે આને શું કહીએ છીએ? ટ્રુ. હજી ઊંધું સમજાવું છું. તમને ખબર પડી આમાં કે નહીં? નોન કન્વેન્શનલ એટલે નોન રિન્યુએબલ, નોન રિન્યુએબલ, નોન પ્લસ નોન રિન્યુએબલ. હા, રિન્યુએબલ. કે સોલાર અને વિન્ડ એનર્જી છે એ રિન્યુએબલ, નોન રિન્યુએબલ રિસોર્સિસ છે, એટલે ટ્રુ કહે છે અહીંયા. કોઈ વાંધો નહીં, ફેમિલી ફંક્શન એન્જોય કરો. ખબર પડી ને? ઓકે. ટ્રુ શું કામ છે ખબર પડી ને? કન્વેન્શનલ એટલે ટ્રેડિશનલ થાય, ટ્રેડિશનલ નથી, ઓર્થોડોક્સ નથી, નોન રિન્યુએબલ નથી. મતલબ નોન કન્વેન્શનલ છે એટલે કે નોન ટ્રેડિશનલ છે, નોન ઓર્થોડોક્સ છે, રિન્યુએબલ છે. બરાબર? એટલે ટ્રુ આવે. અલ્ટરનેટિવ, નોન કન્વેન્શનલ એટલે અલ્ટરનેટિવ છે, અલ્ટરનેટિવ એટલે સાચું આવે. Which gas is produced in a biogas plant? बायोगैस प्लांट में कौन सा गैस बनता है बताओ? सही है, मीथेन गैस बनता है, मीथेन. Which port has an automatic lock gate system? ऐसा कौन सा गैस? ये पोरबंदर है वो फ्री है एंटायर ईयर. कंडला इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात. मुंद्रा के बारे में उतनी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई, प्राइवेट पोर्ट है, अदानी. भावनगर हैज automatic lock gate system. Bhavnagar is the correct. One word. Transport used for liquids and gases is. ऐसी कौन सी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो लिक्विड्स और गैसेस को पास ऑन करती है? करेक्ट, 100% राइट. पाइपलाइंस. करेक्ट. व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री कॉल्ड? एक कंट्री की पूरी इनकम को क्या कहा जाता है? ये दो तो गए ही गए. स्टेट इनकम नहीं कहा जाता क्योंकि कंट्री की बात है, फैमिली इनकम की बात नहीं है क्योंकि कंट्री की बात है. नेशनल इनकम, पर कैपिटा नहीं कहा जाता. नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर. नेशनल इनकम. हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड? कैसे कैलकुलेट होती है बताओ? इनकम एक्सपेंडिचर की कोई बात नहीं है, इनकम पॉपुलेशन की बात है, पॉपुलेशन इनकम की बात है, टोटल इनकम पॉपुलेशन की बात है. आप कैसे सोल्व करोगे इसे?
टोटल इनकम को पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दोगे, राइट। यहाँ पे ऐसी निशानी है तो ध्यान रखना, राइट। निशानियाँ बहुत ही मैटर करती है, माइनस की निशानी है तो भी ध्यान रख लेना। विच सिस्टम इज कॉल्ड द कैपिटलिस्ट सिस्टम, किसे कहा जाता है? कैपिटलिस्ट सिस्टम किसे कहा जाता है? कैपिटलिस्ट सिस्टम। सोशल सिस्टम का कोई दूसरा नाम नहीं है। मिक्स इकोनॉमी का दूसरा नाम है, सी मार्केट। मार्केट का दूसरा नाम है कैपिटल सिस्टम। तीसरा नाम भी है ना, फ्री इकोनॉमी, मार्केट। इन a socialist economy all decisions are taken by the state। सही है गलत? in socialist economy all decisions are taken by the state, even agriculture, even production, even how to use the resources, everything is taken by, all the decisions are taken by the state। state मतलब central government। सही है, ट्रू है ये। विच कंट्री फॉलोज अ मिक्स इकोनॉमी, कौन फॉलो करता है इसमें से? मिक्स इकोनॉमी कौन फॉलो करता है? मिक्स इकोनॉमी हम लोग फॉलो करते हैं, इंडिया वाले। ये यूएसए क्या फॉलो करता है? चाइना एंड रशिया क्या फॉलो करता है वो भी बता दो। यूएसए मार्केट, राइट, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम। चाइना एंड रशिया सोशलिस्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना। पीपल अनेबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स, उसे क्या कहा जाएगा? पीपल अनेबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स। अपने बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती उन लोगों की, तो क्या कहा जाएगा? पुअर। सीधी सी बात है, उसे पुअर कहा जाएगा। रिच अनएम्प्लॉयड की बात नहीं, लिटरेट की बात नहीं है, पुअर कहा जाएगा। विच स्टेट हैड द लोएस्ट पोवर्टी रेट? क्वेश्चन अपने आप समझो और जवाब देने की कोशिश करो। गोवा, करेक्ट है। परसेंटेज भी याद रख लेना, कभी काम आएंगे। 5.09। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस इज, हाँ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज पीडीएस। वेज रेट इज फिक्स्ड अंडर प्रोग्राम। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? डब्ल्यूएचओ, पीडीएस या मनरेगा का कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें रेट, वेज के मतलब सैलरी के रेट, वेतन के दाम फिक्स करे जाते हैं कि आपको इतना पैसा मिलना है, काम हम दे पाए या ना दे पाए, यू विल गेट द सम पार्ट ऑफ द डिसाइडेड अमाउंट। मनरेगा, मनरेगा इज द राइट आंसर। मनरेगा में 100 डेज का काम होता है, हर 7 घंटे काम करना है, फिक्स रेट है। यदि आप काम नहीं दे पाए तो यू हैव टू पे, पैसे तो पे करते ही है। लैक ऑफ वर्क डिस्पाइट विलिंगनेस इज कॉल्ड। वेज प्लस जॉब सिक्योरिटी, हाँ सही है। लैक ऑफ वर्क डिस्पाइट विलिंगनेस इज कॉल्ड। काम का अभाव, इच्छा तो है काम करने की पर काम कर नहीं पाते, मिलता नहीं, काम की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट आंसर, अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसे ध्यान में रखना, स्टेटमेंट है, अच्छे से पढ़ना। 181 अभियम हेल्पलाइन ऑपरेट्स इन गुजरात। 1975 was declared International Women's Year. One only, two only, both 1 and 2 right है, या एक भी सही नहीं है? सी, दोनों सही है। 75 वुमेन्स ईयर था, 181 गुजरात में ऑपरेट करती है अभयम हेल्पलाइन। 75 से 85 वुमेन डिकेड था, 2002 का ईयर वुमेन एम्पावरमेंट ईयर था। सही है।
विच ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज वुमेन एम्पावरमेंट ईयर? देखो सब कुछ आ गया हमारे पास। एक भी मार्क जाने वाला नहीं ऑब्जेक्टिव्स में, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट। आपके 24 तो आ गए, छोड़ेंगे नहीं हम। 2002 2002 विच स्कीम प्रोवाइड्स फ्री बाइसिकल? याद रखना, यहाँ पे फोकस करियो। फ्री बाइसिकल गर्ल्स को दी जाती है गुजरात में, कौन सी योजना के तहत? फ्री बाइसिकल 150 लाख, 1.5 लाख बाइसिकल फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई ना, ऐसा कुछ लिखा है। सरस्वती साधना योजना, SSY बाइसिकल में भी वाई, योजना में वाई आता है। सरस्वती साधना योजना 1.50 लाख मतलब 1.5 लाख बाइसिकल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है गर्ल्स को स्कूल जाने के लिए, और स्कूल यदि दूर है तो ST बस में फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफरी ट्रैवलिंग फ्री कर दिया जाता है। विच प्रॉब्लम क्रिएट सोशल डिवीजन एंड वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट? आप जिस तरह से आंसर दे रहे हो, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आप किसी अच्छे टीचर के पास पढ़े हो, जिसने अच्छे से पढ़ाया है आपको, काफी सारा मटेरियल भी दिया हुआ है, आपके पास रिवीजन भी करवाया हुआ है। कम्युनलिज्म इज द रीजन जो सोसाइटी में डिवीजन पैदा करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को वायोलेट करता है, कम्युनलिज्म। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन को रोकने वाला कौन सा आर्टिकल है जो डिस्क्रिमिनेशन को रोक देता है? बस बहुत हो गया, अब तो रहने दे। आर्टिकल चल निकल 15। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन के दूर है। फिल इन द ब्लैंक इज द ग्लोबल प्रॉब्लम। ये पूछा गया सवाल है बार बार, हजारों बार, लाखों बार। तुम मेरे लाखों में एक हो, कितनी बार पूछोगे? एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे? वैसा है ये एक ही तो प्रश्न है, कितनी बार? टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। विच इंसर्जेंट ग्रुप ऑपरेट्स इन नागालैंड? नागालैंड है तो अपने स्टेट का नाम तो ग्रुप में होगा ही होगा। एन वाला कोई सिलेक्ट करो। NSCN। Where did the Naxalite movement begin? कहां से शुरू हुई थी? कहां से शुरू हुई थी? बिहार, झारखंड, आंध्रा, वेस्ट बंगाल। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, वाह। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल कहां से शुरू हुई थी? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहां से? नक्सलबारी गांव से। कहां से इंस्पिरेशन ली थी इन लोगों ने? माओ से तंग, चाइनीज माओइस्ट है ना, माओ से तंग, वेस्ट बंगाल। व्हाट डू अर्थवॉर्म्स मेनली फीड ऑन? क्या खाते ये और जिंदा रहते? माओ से तंग, हाँ, तंग आकर चाइना आगे बढ़ गया, वहीं छोड़ गया। सोइल, मिट्टी खाते हैं ये। आपने कभी मिट्टी खाई है बचपन में, छोटे थे तो? मैंने तो नहीं खाई कभी। आपने कभी खाई होगी मिट्टी? वर्ल्ड कप जीते थे तो रोहित शर्मा ने मिट्टी उठाकर चखी थी। ऑर्गेनिक मैटर इन रूट्स फॉर्म्ड बाय माइक्रोबीज इज कॉल्ड। मेरी मिट्टी का एक सॉन्ग भी है ना, बहुत ही बड़ा फेमस है। ऑर्गेनिक मैटर जो बनती है रूट्स के आजू बाजू, माइक्रोबीज के थ्रू फॉर्म होती है, उसे कहा जाता है नेचुरल ह्यूमस। इट इज वेरी गुड फॉर द रूट्स ऑफ द ट्री। चलो, विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट मेक्स हेलमेट्स कंपल्सरी?
मोटर व्हीकल एक्ट जिसमें ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग। मेरे देश की मिट्टी। सही है। सेक्शन 129, तेरी मिट्टी में मिल जा, तेरी मिट्टी में मैं खो जाऊं। क्या आंसर? मिक्स आंसर नहीं आना चाहिए भाई। गुलाब बन के खिल जावा। अच्छा, गुल बन के। सेक्शन 129 याद रखना, 194 या मत कर देना। मतलब 4 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा, आपके बाइक में बैठा हो, आप बैठे हो, पिलियन राइडर जो भी है, आप चला रहे हो, पीछे कोई बैठा है, बच्चा भी बैठा है, तो एवरीवन हैज टू वेयर द हेलमेट। व्हीकल्स फ्रॉम द राइडर गेट प्रायोरिटी एट राउंड अबाउट्स। कौन से व्हीकल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए जब आप राउंड अबाउट है? देखो, आपकी बात तो वैसे सही है। According to the section 129 of Motor Vehicle Act, every motorcyclist, two-wheeler driver and any person above age of 4 sitting behind is must wear a helmet, approved standard always on the public road. अब 194D जो है ना, वो मोटर व्हीकल एक्ट, without wearing a helmet riding on or sitting at the back of two-wheeler can be penalized at the driving license. हाँ, पेनलाइज, पनिशमेंट देने की बात आती है तो 194D है, पर ऐसा लिखा है कि हेलमेट पहनना चाहिए, वो 129 है, राइट। Vehicles from the right get priority at the roundabout, true है ये। The ideal humidity of for plants in micro environment, माइक्रो एनवायरमेंट में प्लांट्स की ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? दोनों एक समझ में आ गए ना? हम्म, 65 to 72% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए माइक्रो एनवायरमेंट में। Which folk dance imitates birds like peacock and sparrows? जिसमें नकल करी जाती है। पीकॉक एंड स्पैरोस की नकल करी जाती है। चाड़ो डांस, चाड़ो डांस, चाड़ो। ट्राइबल डांस में ये, ट्राइबल डांस का जो पैराग्राफ है ना, उसमें ये एक फोटो भी है, लोग ढोलक बजा रहे हैं, उसके बाजू में जो लाइन है वहाँ ये लिखा है चाड़ो डांस। इसमें ये लोग बर्ड्स लाइक पीकॉक एंड स्पैरोज की नकल करते हैं, चाड़ो डांस, करेक्ट। विच इंडस वैली सिटी हैड अ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम? वाटर प्यूरिफिकेशन की सिस्टम तो कहाँ थी? वाटर को प्योरीफाई करा जाता है। हाँ, मोर के पंख, मतलब फेदर्स पहनते हैं। लोथल में तो डोकयार्ड था ना, प्यूरिफिकेशन सिस्टम के बाद लोथल, रंगपुर तो है नहीं। धोड़ावीरा और हड़प्पा, धोड़ावीरा सही है। धोड़ावीरा में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम थी, जो आज भी कई सिटीज में, हमारे सिटीज में भी नहीं है, हमें घर पे आरओ लगाना पड़ता है। हु रोट तुझू के जहांगीरी? तुझू के जहांगीरी किसने लिखी थी? बाबर तो चला गया था, उसके बाद ये सब आए, मतलब बात ही नहीं है कोई। औरंगजेब ऐसा कुछ लिखे, मानने में नहीं आता। अकबर खुद अपने बारे में क्या लिखता है? हड़प्पा फॉर कॉटन कॉपर यूटेंसिल्स के लिए जाना जाता था। सी सर, जहांगीर, जहांगीर ने खुद लिखा था, तुझू के जहांगीरी।
आइडेंटिफाई द सिस्टम वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट, दोनों साथ में अस्तित्व में रहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। मिक्स इकोनॉमी में, जैसे कि इंडिया जिसे फॉलो कर रहा है, फ्रांस जिसे फॉलो कर रहा है, राइट ना, मिक्स इकोनॉमी। विच इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल, कौन सी इंडस्ट्री का बॉक्साइट रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद ही वो इंडस्ट्री चलती है? डेवलपिंग कंट्रीज, सही है, डेवलपिंग कंट्रीज उसमें आगे होते हैं, सही है, करेक्ट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और बॉक्साइट दोनों साथ में काम करते हैं। स्टील इंडस्ट्री चलानी है तो आपका आयरन और आपका रॉ मटेरियल होगा। सीमेंट इंडस्ट्री चलानी है तो माइका वगैरह जो है, कई सारे पत्थर वो आपके रॉ मटेरियल में आएंगे, हैवी। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर? हाँ, एल्यूमिनियम मतलब बॉक्साइट, लीड मतलब गलेना, गलेना मतलब लीड। पाली लैंग्वेज, पाली। मैं आपको एक सवाल और भी पूछ लूं, अर्लीस्ट हिंदी फॉर्म में लिखी गई कोई बुक का नाम आप दे सकते हो? अर्लीस्ट हिंदी में लिखी गई बुक जो अर्लीस्ट हिंदी में लिखी गई थी। चंद बरदाई, किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इज राइट, करेक्ट। किसने लिखी थी पता है? चंद बरदाई। पाली लैंग्वेज, सही है। Which constitutional article provides reservation to SCs and STs in legislatures? कौन सा आर्टिकल? 15 तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए है, 330, 332, 334 ये तीनों रिजर्वेशन के लिए है, 0 to 4 रिजर्वेशन के लिए। क्या बात है, सीखने को मिल रहा है कि नहीं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। Which ancient Indian scripture states that India extends from Himalaya in the north to the Indian Ocean in the south? कौन सी बुक में लिखा है ऐसा? ये लास्ट चैप्टर में लास्ट लाइन में आता है, वही है ना ये, लास्ट चैप्टर में लास्ट लाइन में, राइट? विष्णु पुराण। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना। टोटल ऑफ हैबिट, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स leading humans to the highest level. उसे क्या कहेंगे? हेरिटेज कहेंगे, कल्चर कहेंगे, एक्सकेवेशन खोदाई काम, आर्किटेक्चर नहीं, दोनों ऐसा हो सकता है। कल्चर, कल्चर की दूसरी डेफिनेशन पता है? एकदम सिंपल सी, 2-3 वर्ड में। कल्चर इज द करेक्ट आंसर। अ वे ऑफ लाइफ, हाँ, आप किस तरह से जी रहे हो, वही कल्चर है आपका। एक मिनट, वरना मेरा काम तमाम हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट मैसेज आया। पढ़ लिया आपने? Which tribe is considered the most ancient people of India according to the modern researchers of linguistics and anthropology?
सही है। इसमें तो ऑप्शन खुद दूसरा कोई बचता, द्रविडियंस के साथ कंपटीशन हो सकती है। पर नेग्रिटो, नेग्रिटो का दूसरा नाम है निग्रोस। हब्सी भी एक नाम है, वो भी जाना पहचाना नाम है। द एस्ट्रोलॉइड पीपल वर नोन एज निषाद बाय द आर्यंस। आर्यंस को निषाद कहते थे। आर्यंस पहले आए थे या एस्ट्रोलॉइड पहले आए थे? आर्यंस पहले आए थे, एस्ट्रोलॉइड पहले आए थे? वो भी एक सवाल हो सकता है। एस्ट्रोलॉइड पीपल वर नोन एज निषाद बाय द आर्यंस। आर्यंस पहले आए थे या निषाद पहले आए थे? पहले एस्ट्रोलॉइड आए थे, लिखा है उसमें बुक में कि आर्यंस ने एस्ट्रोलॉइड को निषाद कहा जो बाद में आए थे। आर्यंस बाद में आए थे। ट्रू है। Which material was used to plaster the walls of houses and kubas, मतलब huts in ancient times में? प्लास्टर, वॉल्स को प्लास्टर करने के लिए किस चीज मटेरियल का यूज करा जाता था? सीमेंट, लाइम सैंड और काउ डंग एंड क्ले। पोदड़ो और मिट्टी। सही है। ये इसका ये सीमेंट वहां हुआ ही नहीं करता था, लाइम या सैंड तो हुआ करते होंगे पर यूज होता था काउ डंग एंड क्ले, मिट्टी का। राइट। Which city became world famous for its patoda during the Solanki era? याद रखना, Solanki era में पटोड़ा के लिए फेमस हो जाने वाला सिटी। मारे हाटू पाटण थी पटोड़ा मोंघला, एमा रूड़ा रे मोरलिया चितरावजो। કે આપણું હેરિટેજ હે, એમાં અલગ અલગ ટાઈપની ડિઝાઇન કરેલી હોય। આ ફોરેન વાળા બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ખબર પડે ને આપણા કલ્ચરની। આપણે રંગબેરંગી, આપણા કોઈના લગ્નમાં ગયા હોય ને તો આખું બધું કલરફુલ વાઇબ્સ હોય બધા। એના લગ્નમાં તો વ્હાઇટ પહેરીને આવે, વ્હાઇટ આપણે બેસણામાં પહેરીએ ભાઈ। અને પાછું ટુ વે, બે બાજુ પહેરી શકાય, ડિઝાઇનો એવી હોય। આ પેરિસ ને ન્યુયોર્ક ને લાસ વેગાસ ને ખબર પડે કે કોને ફેશન કહેવાય। વર્ષો પહેલા આપણે એ ફેશનમાં જીવતા હતા। પછી અંગ્રેજો આવ્યા ને બધું દાટ વાળી નાખ્યો। પછી એને કીધું કે આ ભાઈ આને ફેશન કહેવાય, તો આપણે એને ફેશન કહેતા થઈ ગયા। જીન્સ ફાડી નાખે તો કે ફેશન। કપડા ન પહેરે એને ફેશન કહેવાય, તો એ તો પેલા લોકો ક્યાં પહેરતા હતા જ્યારે ખબર નહોતી પડતી ત્યારે? તો તમે ફેશનનો બહુ પાછળ કહેવાય, એ લોકો પહેલા એવા હતા। એમ નહીં, કપડા ના હોય અને ના પહેરાય એને ફેશન કહેવાય, બાકી ભિખારી ફાટલા જ કપડા પહેરે છે। હાલો ભાઈ, આઈડેન્ટિફાઈ ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ રિગાર્ડિંગ ધ ધમાલ ડાન્સ। વંચાય છે ને? It is performed by Siddhis. Coconut shells called Mashira are rhythmically struck. Siddhis live in Gir region. 1 2 3 1 सही है, 1 2 दोनों सही है क्या? तीनों सही है। डी तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। हाँ, सी, तीनों सही है। ऑल ऑफ द वो। Which Sanskrit word is the origin of the word નૃત્ય? ડાન્સમાં પણ આપણે કેટલા આગળ, કેવા કેવા ટાઈપના ડાન્સ હતા આપણે ત્યાં। નૃત્યમાં આલિશાન હતા, મંત્રમુગ્ધ થઈ જતા। મોટા મોટા રાજાઓના દરબારની અંદર એવા નૃત્યો થતા। આ બી જો તું હવે કાંઈ નહીં, ડીજે વાગ્યા રાખે, ડીજે બંધ થઈ જાય, ખાલી જનરેટર ચાલુ રાખે તો ડે ડે ડે, દેર ઇઝ નો અધર સ્ટેપ। અને આજે આપણે જો ગરબાને પ્રિઝર્વ રાખ્યા તો આપણે ગરબાની અંદર કેટલા સ્ટેપ આવ્યો, આપણા જ છે ને, એ ક્યાં એ લોકો શોધેલા છે? ઓલો એક માઇકલ જેક્સન થઈ ગયો, મૂન વોક કરે, આમાં આમાં ચાલે, તો એ વળી મૂન વોક। હવે આપણે શું મૂન વોક? અમારા જેવા કથકલીના સ્ટેપ કરો તો ખબર પડે ભરતનાટ્યમ કેમ થાય। કયો વર્ડ હતો? વિચ વર્ડ ઇઝ નૃત્ય? નૃત્ય ઉપરથી નૃત્ય આવ્યો ને, નૃત્ય।
હાલો પછી who is considered the originator of dance? डांस के पापा वो भी तो हमारे हैं। तांडव कौन कर पाएगा? फॉरेन लोगों की कोई कैपेसिटी नहीं है तांडव कर पाए, वो चलते हैं हमसे, इसलिए छुपाने की कोशिश करते हैं। इंडिया के पास जो है उसे उसका विरोध करो, हमारा वहां डालो। शिव, द लॉर्ड ऑफ म्यूजिक शिव, द लॉर्ड ऑफ नॉलेज शिव, द लॉर्ड ऑफ डांस शिव। चार सारे के सारे राग कहां से आया? भगवान शिव के पंचमुख से। एवरीथिंग इज शिव। शिव है तो सब कुछ है। लॉर्ड शिव। शिवोहम 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 शिवो। બધા જ આર્ટના ઓરિજિનેટર મહાદેવ છે. All type of knowledge came from Mahadev. હર હર મહાદેવ હર. ચંદ્રમૌલેશ્વર પાછા આપણે સોમનાથમાં જ છે. Fill in the blank. The book नाट्यशास्त्र was written by. नाट्यशास्त्र किसने लिखा? कालिदास, नारद, भरत मुनि. मुझे तो लगता है कि कालिदास ने नहीं लिखा होगा. नारद जी भी उतने नाट्यशास्त्र लिखने में व्यस्त नहीं होंगे, तो चलो मान लेते हैं भरत मुनि होंगे. हाँ, वो वही निकले. देख, Which classical dance form is famous in Kerala? केरला से कौन आता है? कथक, कुचिपुड़ी, सिस्टर ऑफ पानीपुरी, कथकली. मणिपुरी तो केरला में नहीं, वो तो मणिपुर में है. चलो यहां से निकल गया. कथन करे सो कथक कहावे. केरला कथकली. केरला का कथकली. केरला कथकली. Which character is Bhava in Bhavai drama is used to promote social awareness program? ये बोर्ड में पूछा हुआ 2 मार्क का सवाल था. कि there is a character in Bhavai drama which used to promote social awareness programs like Beti Bachao, Beti Padhao. Write a short note on that. एक रंग लो, एक रंग ले, हूँ रंग लो, हूँ रंग ले, रंग लो रंग ली. Which Indus Valley city had a huge dockyard? बहुत ही बड़ा डॉकयार्ड हुआ करता था. एक समय का इंटरनेशनल पोर्ट भी हुआ करता था. हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो. एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये 5 स्टार मिलेंगे. ठीक है, लेके जाना. लोथल में बहुत ही बड़ा एक डॉकयार्ड हुआ करता था और उसे फैसिलिटेट करने के लिए अलग से व्यवस्था भी थी. डॉकयार्ड. What was the upper part of an ancient town called? इसके ऊपर से एक मूवी भी आया था जो बहुत ही बकवास था. मैंने नहीं देखा पर सुना है सर. पार्ट 9th में तो भवाई સર પણ 9th માં તો ભવાઈને ડબલ મીનિંગ વાળો પ્રોગ્રામ છે. આ છે જ એવું જ છે. હવે કદાચ એવું નહીં હોય, પણ પહેલા ડબલ મીનિંગ બહુ બધા યુઝ કરતા ભવાઈમાં. રિયાલિટી છે. હવે ભવાઈ થાય છે એમાં કઈ રીતે થાય છે શું છે ખબર નથી, બટ પહેલા એવું હતું. ધેટ્સ રાઈટ, ધેટ્સ ટ્રુ, કરેક્ટ. સિટીડેલ, કરેક્ટ ને? સિટીડેલ. ચલો, case based question છે. A site has a great bath, planned drainage and public buildings. Which city is it? Which city is it? रोड्स भी है. अच्छा, रोड्स भी थे, चलो वो भी ऐड कर देते. मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो. Identify the term. An oval shaped structure preserving Buddha's relics. Relics का मतलब है leftovers, मतलब जो बुद्ध के रिमेनिंग्स जिसमें रखे हुए होते हैं. ओवल शेप का होता है जिसके अंदर भगवान बुद्ध के रिमेनिंग्स को रखा जाता है. ये कहा जाता है स्तूप.
ठीक है ना, स्तूप, स्तूप। Which caves are situated near the mouth of the Shetronji river? Shetronji river के माउथ में, मतलब उसके नजदीक, वहीं कौन सी केव्स है? शेत्रुंजी रिवर। यूनिक है ना सारा एमसी ऑब्जेक्टिव्स, रिपीटेड नहीं है। डाउटफुल लग रहा है क्या? शेत्रुंजी रिवर, तड़ाजा, तड़ाजा, તળાજા। સર ઘણા બધાના આન્સર ઓપ્શન સી જ આવે છે। આ એ આવ્યો, આગળ એ આવ્યો તો। The Sun Temple of Modhera was built during the reign of Solanki King Bhimdev I. પાલીતાણા, શેત્રુંજી river, ભાવનગર, તળાજા, nearest locations. True. Bhimdev I, Solanki King, Sun Temple, Modhera, everything is right. What is the entrance gate of a South Indian temple called? साउथ इंडिया के टेम्पल के एंट्रेंस गेट को क्या कहा जाता है? हाँ, इन 1026 AD, राइट, चांदवी, वेरी गुड। जब सन टेम्पल ऑफ मोडेरा का बनाया गया था, करेक्ट है। गोपुरम, गोपुरम कहते हैं जो, देखो इसमें भी आंसर सी नहीं आया, गोपुरम, डी। Which mosque of Ahmedabad is famous for its shaking millrates? આખા વર્ષમાં પહેલી વાર લાઈવ લેક્ચર કર્યો છે મેં। વેરી ગુડ। અમારા એવા નસીબ ક્યાંથી હોય કે તમે આવો, આજે અમારા ભાગ્ય ખુલી ગયા। આ વ્યાસ કરીને સરનેમ છે, હું પહેલી વાર જોઉં છું। ઝૂલતા મિનારા। Who wrote the book अष्टाध्यायी? किसने लिखी थी? Who wrote the book अष्टाध्यायी? बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर है ये। पाणिनि, सीधी सी बात है। इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखा था, मैनेजमेंट के ऊपर लिखा था, कालिदास नहीं यार। पाणिनि बोल रहे हो और कालिदास के ऊपर? पाणिनि, कालिदास ऋतु संहार, कुमार संभव वगैरह वगैरह कई सारे बुक लिखी थी, पाणिनि। बुद्धिस्ट रिलीजन लिटरेचर इज नोन एज, बुद्धिस्ट रिलीजन का लिटरेचर क्या मुझे पहचाना है? उपनिषद वो हिंदू है, अरण्यकाश जो लिखा है वो आर्यंस ने लिखा था जब वो अरण्य में रहते थे, जंगलों में रहते थे। त्रिपिटिका, तीनों पिटिका के नाम पता है? त्रि मतलब तीन, पिटिका मतलब खजाना, तीन खजाने। अभिधम्म पिटिका, सुक्त पिटिका, विनय पिटिका। वाह, करेक्ट, तभी 80 में से 80 आते हैं। त्रिपिटिका। हु रोट हर्षचरित? मेरा चरित्र किसने लिखा? मेरा, मेरा चरित्र किसने लिखा? कौन है बे? बाणभट्ट हर्षचरित्र लिखे, जिसमें किंग हर्ष के शौर्य गाथाएं लिखी गई थी जब मैं युद्ध में जाता था। Which is the oldest book written in अवधी लैंग्वेज में लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक? अवधी लैंग्वेज में लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक, अवधी लैंग्वेज में लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक। तुलसीदास ने लिखा था कुछ, रामचरितमानस नहीं, वो अवधी लैंग्वेज में थी, पर सबसे पुरानी पुस्तक वो नहीं है। हाँ, पद्मावत बाई मुल्ला दाऊद, चंदायन। क्या है? विच इज द ओल्डेस्ट बुक रिटन इन अवधी लैंग्वेज? चंदायन।
क्या कहते हो? कुछ तो गलत है इसमें। पद्मावत। सही है। ऑप्शंस गलत नहीं हो सकते। चंदा एंड बुक लिखी थी, जो मुल्ला दाऊद ने लिखी थी। ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज। टेक्स्ट बुक में देखो आप, उसमें होगा ये। पद्मावत जो थी वो मोहम्मद जयासी ने लिखी थी बुक। पद्मावत मोहम्मद जयासी, जिसके ऊपर से मूवी बना पद्मावत, मोहम्मद जयासी ने लिखी थी। वो अवधी लैंग्वेज में थी पर ओल्डेस्ट बुक नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। पृथ्वीराज रासो वो हिंदी में लिखी गई अर्लीस्ट हिंदी फॉर्म में लिखी गई बुक है ना। गलती निकल गई हमारी यहां से। सही है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कई बार इसमें फंस जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से मार्क कट जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम ऐसे अभी रिफाइन हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं, जिसमें जो भी कचरा है वो निकल जाना चाहिए, वो रहना नहीं चाहिए, डाउट 0% हो जाना चाहिए। दैट्स वाई वी आर प्रैक्टिसिंग। पता है फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि कोई भी एक लोचा हो वो निकल जाना चाहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं नील, तो हम क्या करें, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। उसने चैप्टर 4 में से बोर्ड ने कोई ऐसा दिया नहीं है कि इस पेज से पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, राइट। सो मुंजाવાનું નથી। Which ancient university was located at बेड़गांव विलेज नियर पटना? बेड़गांव विलेज नियर पटना में कौन सी यूनिवर्सिटी है? पटना 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 पटना, नालंदा। ये यूनिवर्सिटी को फिर अभी रिनोवेट करने का काम शुरू हो कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है, फिर से बना रहे हैं नालंदा। Yuan Sang carried 653 books from Nalanda to China. लेके गया बंदा नालंदा से चाइना। ट्रू, ट्रू यही है। कौन सी यूनिवर्सिटी से लेके गया? नालंदा से। पढ़ने के लिए आया था, मतलब पढ़ने लेने के बाद लेके गया था। आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटी कैपिटल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट भी हुआ करता था। बोलो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मैत्रक डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? मैत्रक, वल्लभी, हाँ वल्लभी। किंग्स वो हिंदू हुआ करते थे और यूनिवर्सिटी कंप्लीटली बुद्धिस्ट थी। उसके जो आचार्य थे वो भी बुद्धिस्ट थे। आचार्य का नाम पता है? वो भी पूछ सकते हैं। फिर भी हिंदू किंग्स उसे पेट्रोनाइज करते थे, पैसे देते थे, डोनेट करते थे, आजू बाजू के गांव वाले भी उसे डोनेट करते थे। उसका गेट्स के ऊपर जो वहां से निकला हुआ अच्छे स्टूडेंट्स जो थे उसका नाम लिखा करते। स्थिरमती गुणमती आर द नेम्स। हाँ, दे यूज्ड टू बी द मास्टर्स यार। ચાઇનીઝ હોય પણ માસ્ટર દિમાગી બહુ પાવરફુલ હોય। અહીંયા આવીને ભાષાઓ તો બધી બહુ શીખતા પહેલા, આજે ઘણા એવા હોય છે જેને એક કરતા ઘણી બધી ભાષાઓ આવડતી હોય, રાઈટ। તો ઇટ્સ વલ્લભી। इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? यहाँ पे फोकस करना भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 70 to 52 में आप बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए।
हाँ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। 52 का मतलब है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। 72 का मतलब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये दोनों दिमाग में बैठा लो आप, ये दोनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इंडियन IBW 52 में आया था, फिर WPA 72 में आया था। आप ऐसे याद रख सकते हो, IBL मतलब IPL पहले आई थी, WPA मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग वो बाद में आई थी, जिसमें 2 बार RCB जीत गई टाइटल, जो विराट कोहली कभी नहीं जीत पाए। 1972 याद रहेगा ना भाई, याद रहेगा ना। Which organization was established in 1883 for environmental conservation? एनवायरमेंट के कंजर्वेशन हेतु 1883 में सबसे पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, सबसे पुरानी। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS 1883, oldest one, oldest one, oldest one। करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी प्रिजर्व्स मॉन्यूमेंट्स। द इंडियन ट्रेजर ट्रो एक्ट वाज पास्ड इन 1876। बोलो क्या है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करता है, सही है। ITT है, इंडियन ट्रेजर ट्रो एक्ट, वो भी 1876 में पास हुआ था, वो भी बता। मतलब सी, बोथ ए एंड बी दोनों सही है, बोथ ए एंड मतलब 1 and 2। विच टेम्पल वाज शिफ्टेड ड्यू टू द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की वजह से? कौन से टेम्पल को शिफ्ट करा गया था? इसमें से कौन से टेम्पल? एक्चुअली 2 टेम्पल है, पता है ना, 2 टेम्पल को शिफ्ट करा गया था। हाँ, संगमेश्वर एंड पापनाशम। संगमेश्वर टेम्पल और दूसरा इसका भाई है पापनाशम टेम्पल, दोनों को शिफ्ट करा गया था आलमपुर महमूदनगर डिस्ट्रिक्ट। सही बोल रहा हूं मैं? चलो, द फॉरेस्ट, विच फॉरेस्ट टाइप इज कंप्लीटली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट? जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है। विच फॉरेस्ट टाइप? अनक्लासिफाइड के ऊपर किसी का कंट्रोल कुछ नहीं होता। कम्युनिटी फॉरेस्ट के ऊपर कम्युनिटी का कंट्रोल होता है। प्रोटेक्टेड और रिजर्व, रिजर्व ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, रिजर्व ज्यादा कंट्रोल होता है, प्रोटेक्टेड उतना कंट्रोल नहीं होता जितना रिजर्व होता है। और कंप्लीट कंट्रोल की बात करिए, इसीलिए रिजर्व फॉरेस्ट। व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, ट्रीज का खात्मा हो जाना, विनाश हो जाना, तबाह हो जाना, वही है। फॉरेस्ट के एरिया को नापने की बात नहीं है, फॉरेस्ट में रिसर्च करने की बात नहीं है, ट्रीज उगाने की बात नहीं, वो तो अफॉरेस्टेशन हुआ। नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है इसमें से? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम। वेड़ाभद्र गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, मरीन नेशनल पार्क गुजरात में है, राइट। जिम कॉर्बेट हिमाचल, हमारे यहाँ वेड़ाभद्र, ठीक है। उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल नहीं। Which region was declared a biosphere reserve in 2008? बायो रिजर्व जिसे डिक्लेयर करा गया था यूनेस्को ने।
नीलगिरी, सुंदरबन, रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार। रण ऑफ कच्छ हमारा गुजरात का। धोरडो, कुछ दिन तो गुजारे गुजरात में। रण ऑफ कच्छ। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? फोकस करो ना सरफेस वाटर के ऊपर। ये कंफ्यूजन करने वाला सवाल कई बार पूछा गया है, मैं लिख के देता हूँ, कई बार पूछा गया है। थोड़ा बेरा कहाँ से आया है भाई? थोड़ा बेरा, अच्छा कच्छ में है इसलिए थोड़ा बेरा। मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर रिवर्स है, रिवर्स। द परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश के आसपास के सारे एरियाज में कितने परसेंटेज ग्राउंड वाटर पाया जाता है, मिला जाता है? मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वहां से। 42%, सही है, 42% इज द करेक्ट आंसर। चलो करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। ग्रैंड एनिकट कैनाल इज बिल्ट ऑन रिवर कावेरी। ईस्टर्न यमुना कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1882। बोलो क्या सही है? दोनों सही है। चलो, कावेरी रिवर के ऊपर जो कैनाल बनी थी वो ग्रैंड एनिकट कैनाल थी, और यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल को 1882 में बनाया गया था। बोथ 1 and 2। Which project is constructed on the river महानदी? महानदी के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया? महानदी के ऊपर, कोसी, कोसी नदी के ऊपर, वो मुझे पता है, बिहार, इसकी रिवर सेम है। तो जब भी कोई बोलता है कि सी आंसर आता है तभी बदल जाता है। हीराकुड उड़ीसा। भाखरा नांगल सतलुज है ना? भाखरा नांगल में क्या, कौन सी रिवर है? भाखरा नांगल पंजाब सतलुज, सही है। नागार्जुन सागर कावेरी अभी आया था। कोसी, कोसी, अब एक ही बचा, हीराकुड प्रोजेक्ट। मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड, लास्ट सवाल है ये। हाँ, भाखरा नांगल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तीनों को बेनिफिट देता है। कंजर्वेशन ऑफ ईटर, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है फिर। इसके साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कल के सेशन में हम जाएंगे, जो मेरे पास तैयार है। कल के सेशन में हम जाएंगे जिसमें मैच द पेयर करानी है मुझे आपको। मैं आपको थोड़ा ग्लिम्पसिस दिखा देता हूं। ये देखो, है यहाँ पे, आपको जोड़ना है बस इसे। लोथल किसके लिए जाना जाता है, क्या है, कुछ भी हो सकता है, सामने इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। मनरेगा, भरतनाट्यम, हरडे, व्हाट इज हरडे, फर्स्ट इंडियन रेलवे, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कल की एक बात है ये। अब देखो, मुझे ना एक चीज आपको डिस्कस अभी कर लेते हैं, फिर हम, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के लिए थोड़ा इंग्लिश रिवीजन काम लागे एग्जाम में, या ओके करेक्ट। अब देखो, थोड़ी दिक्कतें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। देखो, इंग्लिश में जो पंक्चुएशन आता है ना, उसके बारे में मैं आपको मतलब बता दूंगा। जो मेन मेन रूल्स है, वो कहाँ आपको कोमा करना है, कहाँ आपको फुल स्टॉप करना है, कहाँ आपको इन्वर्टेड कोमा करना है, मतलब कोटेशन मार्क कहाँ करना है, कहाँ आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ करना है, वगैरह वगैरह, कोलन, सेमी कोलन, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। वो रूल्स आई विल डिलीवर। फिर उसमें जो
क्वेश्चन आता है मेन जिसकी रिक्वायरमेंट और डिमांड होती है मोस्टली, एरर करेक्शन, उसका भी हम लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत है कोई है ही नहीं। पर याद इतना रखना है कि ये सारे जो ग्रामेटिकली क्वेश्चन है ना, पंक्चुएशन है, फिर एरर करेक्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, वो सारे के सारे टेक्स्ट बुक में से एज इट इज आते हैं। टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ को एज इट इज उठा के रख देते हैं। सो कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट बुक जो लिखी गई है ना वो लिटरेचर है, ठीक है, वो लिटरेचर है। लिटरेचर में कई बार ग्रामर के रूल उतने काम नहीं करते जितने एक्चुअली ग्रामर के रूल करने चाहिए, इसलिए कई बार दिक्कत हो जाती है। पर मोस्टली वी विल प्योरीफाई, रिफाइन, मतलब रिवाइज एवरीथिंग। સેક્શન સી માં ઘણો બધો ડાઉટ છે. ઓકે, સેક્શન સી ને આપણે સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરશું, ડોન્ટ વરી. બધું સાચું લખીએ તો ઇંગ્લિશમાં હાઈએસ્ટ કેટલા આવી શકે? 95 ઉપર જતા રહે. હવે પહેલાની જેમ પેપર ચેક નથી થતા કે કાપવાનું જ હાફ માર્ક ઉડાડી દેવાનું એવું નથી. હવે આપે છે માર્ક, પણ તમે બધું સાચું, એપ્રોપ્રિએટ, ઓન ધ ડોટ, સિમ્પલી બધું લખ્યું હોય, ગ્રામેટિકલી તમારી ભૂલ ના દેખાવી જોઈએ, મોસ્ટલી ગ્રામેટિકલી ભૂલ ના દેખાવી જોઈએ, સ્પેલિંગની ભૂલ, કારણ કે બીકોઝ યુ આર ઇન ધ ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ, તમારે રેગ્યુલર બધું ઇંગ્લિશમાં લખવાનું થતું હોય, એટલે એ લોકો આ ભૂલ ખાસ જોવે કે આ ભૂલ એમની નથી થતી ને ક્યાંય, એ ખાસ જોવાનું. આવી શકે 99 100 આવી શકે, 99 સુધી તો આવેલા છે. હા, સ્કૂલ લેવલે તો માર્ક બહુ કાપતા હોય છે, એ તો બહુ ફરિયાદ હોય જ છે. सर आपने जो फॉर्मेट दिए हैं वही करने हैं अब, क्योंकि स्कूल वाले अलग करवाते हैं. किस फॉर्मेट की बात कर रहे हो आप? राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट जो है वो मैंने जो दी है वो परफेक्ट है, उसमें कोई हिलचाल नहीं है. सेक्शन बी के बारे में भी सोचेंगे एसएस में, डोंट वरी. હા, માર્ક આપે છે એટલે એના પાછળના રીઝન ઘણા બધા હોય કે તમે અત્યારે માર્ક કપાય તો તમે થોડી વધારે મહેનત કરીને બોર્ડમાં સારું લખી શકો, એન્કરેજ થાવ લખવા માટે. આપણે બોક્સ બનાવી દેવામાં કંઈ વાંધો નથી, રાઈટ? બોક્સ બનાવી દેવામાં કંઈ વાંધો નથી. એક 15-20 સેકન્ડની અંદર બોક્સ બની જાય, એટલે રિસ્ક નહીં લેવાનું એવું ઈમેલમાં. રેક્ટિફાઈ ધ એરરનો આપણે લેક્ચર લેશું, એમાં કેવી કેવી કોમન મિસ્ટેક્સ હોય છે એના પર આપણે ફોકસ કરશું. હા, वो तो જેવો ટીચર જાનવી, એમાં એવું છે, ટીચરના મનમાં શું ચાલતું હોય આપણને ખબર નથી, એ શું જોઈને માર્ક કાપે એ આપણને ખબર નથી, એની પાસે ઓથોરિટી છે. બોર્ડમાં એ રીતે કાપે તો આપણે કંઈ કરી ના શકીએ, કંઈ કહી ના શકીએ. એટલે ગીતાનો એક રૂલ છે ને એ આપણે ફોલો કરી લેવાનો. આપણે 100% બધું વ્યવસ્થિત, સિમ્પલી, ડોટ ટુ ડોટ, એપ્રોપ્રિએટ, નો લેંગ્વેજ મિસ્ટેક, નો સ્પેલિંગ મિસ્ટેક, નો ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક આપણે લખી દેવાનું. પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની, એટલે કામ થઈ જાય. પણ તમારે ઈમેલ એવી રીતે શરૂ કરવાનો, 2 પેજનું થાય જ નહીં ને આગળ પાછળ, એક જ પેજમાં લખાય એવી રીતે લખી દેવાનું ને. એસેમાં 4 પેજ ના લખવાનું હોય મારા ભાઈ, એટલો બધો ક્યાં સમય હોય છે કે તમારું ઇંગ્લિશનું પેપર પૂરું થાય? 2.5 પેજ બહુ છે. હા, આપણે એ પ્રાર્થના એ જ કરવાની કે ના, સારા ટીચર આપણું પેપર ચેક કરવા માટે આવે, ચા પીને આવે, બરાબર સારા મૂડમાં આવે. હા, ઘણા એવા હોય જ માઇન્ડમાં. મેં તો એવું સાંભળેલું છે, ઘણા એમને ત્યાં તમે ટ્યુશનમાં ના જતા હોય તો તમારા માર્ક રેગ્યુલર ઉડાડે, ઇન્ટરનલ માર્ક એ ઉડાડે. એટલે મારી પાસે ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ, હું જ્યારે ઓફલાઈન ભણાવતો ત્યારે આવતા, કે મારી પાસે એસએસ ઇંગ્લિશનું ટ્યુશન હોય, છતાં એમને મેમને ત્યાં જતા હોય, ત્યાં ખાલી બેસવા જાય કે અમારે જવું પડે, અમારે ઇન્ટરનલ માર્ક ઉડાડી દે છે, અને ત્યાં જઈને એને ફૂલ માર્ક આવે, આવડે કે ના આવડે, આવું કરે. સ્ટોરી લખવી તો મોરલ આપવાનું, મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી એ તમારો માર્ક ગેઇન કરવામાં સારું પ્રેઝન્ટેશન બતાવે છે. એટલે આવું બધું ચાલતું હોય છે, આમાં પોલિટિક્સ હોય, આમાં બધું. આપણને સૌથી મોટો આપણો માઇનસ પોઈન્ટ શું છે ખબર છે? કે આપણને ઇન્ટરનલ જે 20 માર્ક મળે છે ને, જો એ સિસ્ટમ ઉડાડી દે ને
તો આ 11-12માં એ સિસ્ટમ છે જ નહીં. યુ હેવ ટુ રાઇટ 100 માર્ક પેપર. કોઈ સ્કૂલ કઈ રોલ જ નથી. એટલે ત્યાં એવી બ્લેકમેલિંગ થાય જ નહીં. અહીંયા એક થાય હાડું, શું કરીએ. ઘણા સારા હોય છે કે એને કંઈ લેવા દેવા નથી હોતા. તમે સારું પરફોર્મ કરો તો માર્ક આપે, ના પરફોર્મ કરો તો ના આપે. અને ઘણા એવા ટીચર હોય છે, તમે સારું પરફોર્મ કરો ના કરો તમને ઇન્ટરનલ માર્ક વધારે જ આપે. જો તમારું સારું થતું હોય તો અમે કાંઈ માર્ક આપવા માંગતો નથી. મેં ગયા વખતે 2 થી 3 સ્ટુડન્ટ જોયા હતા. યુ વોન્ટ બિલીવ. એને એસએસમાં 80 આઉટ ઓફ 80 બોર્ડમાં આવ્યા. મારી પાસે જ ભણતા હતા સ્ટુડન્ટ ઓનલાઈન. 80 આઉટ ઓફ 80 એના રિઝલ્ટ છે મારી પાસે. 80 આઉટ ઓફ 80 એસએસમાં આવ્યા. ઇન્ટરનલ માર્ક એમના 1, 2, 3 1, 2, 3 એવા કાંઈ છે. બોલો, જે આટલો બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટ છે કે બોર્ડમાં 80 આઉટ ઓફ 80 લાવે છે. 80 આઉટ ઓફ 80 લાવવા એટલે તેના પેપર 2-3 વાર ચેક થાય અને અલગ અલગ ટીચર્સ ચેક કરે, એક લેવલ બીજા લેવલ એના ઉપરના લેવલ, અને એના આવી રીતે માર્ક આપી નાખ્યા ઇન્ટરનલ. બોલો, નહીતર 100 આઉટ ઓફ 100 થાય. હા, ઓછો છે. એનું કોઈ સોલ્યુશન નથી ને, કાંઈ કરી શકાય નહીં આપણે. એવું થાય. હા, બસ જો એવું છે. ब्लैकमेल करवानी बात है बदी. रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट हर जगह अलग अलग मिल रहा है, तो कौन सा कोई भी फॉर्मेट लिखो, कोई फॉर्मेट. रिपोर्ट राइटिंग में कोई फॉर्मेट मैटर नहीं करता, उससे मार्क मिलते भी नहीं, गेन भी नहीं होते, कटते भी नहीं. सिंपल सा है रिपोर्ट राइटिंग में. बीच में आप टाइटल लगा दो, बाय लाइन लिख दो, एक जगह एक साइड डेट और प्लेस लगा दो, रिपोर्ट लिखो. लास्ट में कोई साइन बाइन तो करनी नहीं है. रिपोर्ट सिंपल है. હા, એટલે આટલું બધું હોય છે ખરું ઇન્ટરનલ માર મૂકવાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, પણ એક કોઈ માનવું જોઈએ ને. પ્રી બોર્ડ્સમાં તમારા જે પર્સન્ટેજ હોય એની યાર કાંઈ લેવા દેવા નથી. બોર્ડ ઇઝ અ સેપરેટ થિંગ. પ્રી બોર્ડ્સ તમારા બધા જ પેપર સ્કૂલ કાઢે છે. બોર્ડ આખી વસ્તુ અલગ થઈ ગઈ. આ સેન્ટ્રલ પ્રોસેસ થઈ ગઈ આખી. તમારી મેન્ટાલિટી પ્રી બોર્ડ્સમાં અલગ હોય છે, બોર્ડ્સમાં અલગ હોય છે. ઘણીવાર ઘટી પણ જાય, ઘણીવાર વધી પણ જાય. તમારી કન્સિસ્ટન્સી કેવી છે, તમે તમારી ભૂલમાંથી કેટલું શીખ્યા છો, તમે કેટલું લેવલ અપ કર્યું છે, આ બધી વસ્તુ જોઈને ત્યાં બરાબર એપ્રોપ્રિએટ ડોટ ટુ ડોટ પેપર લખાય છે તો માર્ક વધી જાય. તમે ઘણું બધું 100 આઉટ ઓફ 100 થઈ શકે બધું, બટ તમારી કન્સિસ્ટન્સી, તમારું હેલ્થ, તમારી મેન્ટલ કેપેસિટી, મેન્ટલ એબિલિટી, મેન્ટલ કામનેસ બધું કામ કરે છે. વેરી ગુડ, અચ્છા હે. હા, મેં જોયું રિઝલ્ટ. 3 સબ્જેક્ટમાં 100 મતલબ 80 આઉટ ઓફ 80 છે તમારા. મેં જોયા. એસએસમાં ઇંગ્લિશમાં કંઈક 1-2 માર્ક જ ઘટે છે. 98.4%. ગ્રેટ. ટેન્શન નથી. ટેન્શન રાખવાનું નહીં. તમે જેટલા ઓછા પ્રેશરાઇઝ થાવ ને બોર્ડ વખતે, એટલા તમારા માર્ક અપ થવાની પોસિબિલિટી વધી જાય. 100% વધી જાય. ઇંગ્લિશ 77 અને એસએસ 80. હા, આમને 80 આઉટ ઓફ 80 છે. ઘણાને 80 આઉટ ઓફ 80 મને બધા રિઝલ્ટ મોકલ્યા હતા સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે મેન્ટલ ટેન્શન કંઈ લેવાની જરૂર નથી. આપણે જે રીતે સિમ્પલી લખી શકાય, ઓછી એરર થાય, ઓછા સ્પેલિંગના મિસ્ટેક્સ થાય, ઓછું ગ્રામરમાં ભૂલ પડે, એવી રીતે સિમ્પલી પેપર લખો તમે, કોઈ ડિઝાઇન ભરચક કર્યા વગર, હે, તો તમારા માર્ક્સ, કારણ કે રીડિંગ કરે ને જે ટીચર ચેક કરે છે, પેપર ચેક કરવામાં કંઈ મિનિટો નથી લાગતી એને. ફટાફટ પેપર ચેક તો આખું પેજ 1-2 સેકન્ડની અંદર સ્કેન થઈ જતું હોય. એટલે એમાં એને જેટલું રીડેબલ ફોન્ટ્સ દેખાય, રીડેબલ બધું દેખાય, એટલી જલ્દી તમારું કામ થઈ જાય. હાર્ડ એટલા માટે કદાચ એનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એવો હોય કે અત્યારે આ લોકો હાર્ડની પ્રિપેરેશન કરેલા તો બોર્ડમાં કદાચ ઇઝી પેપર આવે તો એના માટે ઇઝી થઈ જાય.
વાહ, મોતીના દાણા જેવા, ગ્રેટ. સેક્શન એ જ સાચું પડવું જોઈએ, બીજા બધામાં લખ્યું હોય તો પૂરા માર્ક્સ મળી જાય. હા, સેક્શન એમાં ભૂલ ના થવી જોઈએ, એમાં એકેય માર્ક ના જવો જોઈએ, કારણ કે એમાં તો કોઈ કંઈ કરી જ ના શકે. रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. હા, ટેક્સ્ટ બુકમાં ઘણી બધી મિસ્ટેક્સ છે, પણ આપણે મોટા ભાગે કવર કરી છે બધી. આપણે અકોર્ડિંગ ટુ બોર્ડ જ જઈએ છીએ, અને એ ફેક્ટ જ છે. ગુજરાતી મીડિયમનું પેપર જે છે એની ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે જે આવે છે એનું ટ્રાન્સલેશન આપણને આવે છે, બીજું કશું જ નથી. આખા આન્સર કોઈ ના વાંચે. સમજો તમે, ટીચર્સને શું આપે, એક સેમ્પલ આન્સર કી આપી દે, જે ટીચર્સે પેપર કાઢ્યું હોય ને એ જ આન્સર કી આપે. એમાં સેક્શન ડી ની અંદર ધારો કે મેથેમેટિક્સનો આખો ક્વેશ્ચન છે, તો એમાં કીવર્ડ્સ હોય ને, જે એ આન્સર કીમાં હોય કે આ કીવર્ડ્સ આ જોવાના, દેખાય તો આટલા માર્ક આપવાના, આટલા દેખાય તો આટલા માર્ક આપવાના, આટલા દેખાય તો આટલા માર્ક આપવાના હોય. ને કીવર્ડ્સ મગજમાં ફિટ હોય, જે પેપર ચેક કરતા હોય ને એને કીવર્ડ મગજમાં ફિટ હોય કે આ કીવર્ડ્સ છે, ઓકે કરેક્ટ, આ કીવર્ડ નથી, પછી આન્સર તમે એક પેજનું લખ્યું એમાં કીવર્ડ્સ ના દેખાય, એટલે એવું કહેવાય છે કે તમે જે આન્સર લખો બીસીડીમાં, એમાં જે કીવર્ડ્સ છે, ધારો કે તમે દ્રવિડ વિશે લખતા હોય તો એમાં મેટ્રી આર્કલ સિસ્ટમ લખો, ધૂપ દીપ આરતી લખો, ગોડેસ અને ગોડેસ પાર્વતી શિવ લખો, ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન ક્રિએટર લખો, ડાયરેક્ટ ડિસેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટોન એજ એ લખો. પછી આ બધી વસ્તુ કીવર્ડ્સ કહેવાય. તમે કીવર્ડ્સ બધા હાઇલાઇટ કર્યા, આખું પેપર પૂરું થઈ ગયું, પછી તમે એકવાર રિવાઇઝ તો કરશો, પેન્સિલથી હાઇલાઇટ કરી દીધા, તો એ તમારા માર્કને વધારવાની કોન્સેપ્ટ છે. પ્રેઝન્ટેશન પરફેક્ટ થઈ ગયું તમારું, કે એને કીવર્ડ્સ જ જોવાના છે, એ તમે હાઇલાઇટ કરી દીધા, દેખી લીધું. દ્રવિડનો સવાલ આવ્યો, એને જોયું કે ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન ક્રિએટર, સ્ટોન એજ, મેટ્રિઆર્કલ સિસ્ટમ, ધૂપદીપ આરતી, પાર્વતી શિવ, મતલબ ખબર પડી ગઈ આને બધે આન્સર આપણે જ છે. પછી એમાં ગ્રામેટિકલી મિસ્ટેક ન જોવે, એસએસમાં ફટ 2 માર્ક મળી ગયા. આ કીવર્ડ્સ મહત્વના છે. તમે જેટલા વધારે પોઈન્ટ લખવાની કોશિશ કરશો એટલો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ જશે. એટલે આમાં લેન્થ ઉપર ઘણા માર્ક આપતા હોય છે, પણ લેન્થ ઉપર બધું ના જાય ને. બરાબર. ट्राई करवानी વધારે કોશિશ કરવાની, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. નોટ કરી રાખવાના અમુક પ્લેસીસ ને, અમુક સાથે મેચ કરતા રહેવાના, જોતું રહેવાનું. કારણ કે એમાં કોઈ એવું તો સાયકલ બનતી નથી કે કોઈ એવી ચેન બનતી ન હોય, એટલે અમુક પ્લેસીસ સામે જ રાખવાના લખીને. રોજ એકવાર નજર ફેરવી લો તો થઈ જાય તૈયાર. બરાબર, તમારી એડવાઇસ બધી તમને કામમાં લાગશે. નહીં, હવે મારો ટાઈમ થઈ ગયો છે, બીજું પછી લેક્ચર હોય મારે, બીજું કામ હોય, એટલે હવે આપણે કાલે જ શરૂ કરી દઈશું. રેડી? પણ આ બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ તમને ઘણો બધો ફાયદો કરે છે ને. આપણે કરીબ 400 ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્લિયર કરી દીધા. ચલો, સી સૂન, ગુડ નાઇટ. કાલે પાછા આપણે સેમ ટાઈમે 7:30 મળશું. આપણે પહેલા સેશનમાં 100 કર્યા હતા, બીજા સેશનમાં 100 કર્યા, ત્રીજા સેશનમાં 100 કર્યા, આજે પાછા કર્યા. 4 સેશન લીધા આપણે. અમુક રિપીટ થયા, પણ બધા રિપીટ નથી થયા. તો એમ તો કહી શકાય ચલો 50 રિપીટ થયા હોય તો 350 જેટલા તો આવી ગયા ને. ચલો.